pollination. Agency of pollination. After study of types of pollination, okay, before this agency of pollination, we are discussing about the types of pollination, that is self pollination and cross pollination. Orthogamy and allogamy we have discussed already. Now next is agency of pollination. So what is the agency of pollination? You know, during cross pollination, different pollinating agents are required to transfer the pollen grain from anther to receptive stigma, because here the pollen grains are non-motile and female element is also non-motile. So that pollen grain should be transferred from anther to receptive stigma, and that need some environmental factors, some biotic factors, some abiotic factors. Living and non-living agents are required to transfer the pollen grain, and that's why when the agents are required, that process called as agency of pollination. Okay, so which are the agencies? Basically, in agency of pollination there are two types of agencies. One is called as abiotic agency, means they are called as non-living agents. Abiotic agency includes non-living agents, and second is biotic agency. Biotic agency which includes living agents. Now remember, in biotic agency there are different living agents are used, and that living agents are generally called animals, and that's why generally biotic agency is also called as zoophily. Zoo means different animals are involved. In biotic agency, pollen grains are transferred with the help of different kinds of animals, so they are called as biotic agency or called as zoophily. And in abiotic agency, basically there are two types again. One is called as anemophily. Anemophily, that is pollination with the help of wind pollination. Anemophily means pollination with the help of wind. This is the primitive type of pollination. Such kind of pollination found in gymnosperm also. And second is called as hydrophily. Hydro means water, phily means love. Okay, so when cross pollination occurs with the help of water, is called a hydrophily. And in hydrophily there are again two types. Hydrophily में और दो type है. One is epihydrophily, means pollination occurs with the help of water on the surface. Epihydrophily में जो pollination होता है कहाँ पे होता है? Surface के ऊपर होता है. And second is called as hypohydrophily, that is pollination occurs inside the water bodies. पानी के अंदर जो पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली. ये हाइड्रोफिली के दो टाइप है. और बायोटिक एजेंसी में कौन कौन है? ओके, बायोटिक एजेंसी में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक एजेंसी आर देयर. मैक्सिमम एजेंसी जो है बायोटिक एजेंसी 80% पॉलिनेशन बायोटिक एजेंसी होता है, और रिमेनिंग 20% पॉलिनेशन अबायोटिक एजेंसी होता है. ओके, और बायोटिक एजेंसी में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करते हैं? इंसेक्ट. इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोफिली. क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली. ENTOMOPHILY. एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. स्पेशली इंसेक्ट पॉलिनेशन में याद रखो, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? हनी बी. इंसेक्ट पॉलिनेशन में मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन करता है? हनी बी करता है. कितना करता है हनी बी? 80% by honeybee. इंसेक्ट पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? हनी बी करता है. कितना? 80%. ओके, देन नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप इज एंटोमोफिली. सेकंड टाइप इज ऑर्निथोफिली. Ornithophy, that is pollination with the help of birds. Ewes help in the pollination process, called as ornithophy. Third is called as chiropterophy. Okay, chiropterophy, that is pollination with the help of bats. You know, bats are called as nocturnal animals. Flying mammal कहते हैं bats को. तो वो बैट पॉलिनेशन करता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट इज कॉल्ड एज
Chiropterophily, then Myrmecophily. Okay, Myrmecophily. What is the meaning of Myrmecophily? Myrmecophily means pollination with the help of ants. Pollination with the help of ants or termites. ants या termite के द्वारा जब pollination होता है तो उसको बोलते हैं Myrmecophily. Then Malacophily. Okay, Malacophily, that is pollination with the help of snail. जो मोलस्का में आता है snail. ओके, तो pollination जो snail करती है तो बोलते हैं Malacophily. और लास्ट Ophiophyly. ओके, लास्ट वन इज Ophiophyly, that is pollination with the help of snake के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है सैंडलवुड में वगैरह, तो ये सभी क्या है, देयर आर डिफरेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन प्रोसेस, दैट इज abiotic agencies are of two types, non-living agents are of two types, and biotic agents are different types: insect, birds, bats, primates, arboreal animals like rodents, reptiles. All these are helping the transfer of pollen grain. So these are all agents of pollination. One by one we are now discuss. Among that, first is abiotic agency में क्या है, abiotic agency की characteristic क्या है, फिर what are the different characteristic of abiotic agents of pollination. Okay, abiotic agency means there are non-living agents. Wind and water are non-living agents. There is no requirement of attraction, no requirement of nectar, no requirement of color for abiotic agencies. Okay, flowers are generally not attractive, not having sweet smell or no nectar, and adaptation to attract the pollinators. मतलब वो pollinator को attract कर नहीं सकते, colorless रहते इसके फ्लावर को कलर नहीं रहता है. ओके, तो उसको बोलते हैं क्या, abiotic agency. तो abiotic agency में ओके बेसिकली पहला तो एजेंसी है विंड. ओके, व्हाट इज विंड पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेशन बोला एनिमोफिली. व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन occur with the help of wind is called as anemophily, and this is the primitive type of pollination found in the gymnosperm as well as some primitive angiosperm like monocot, where the flowers are generally colorless, nectarless, odorless, and abiotic agents are involved there, and common abiotic agents. This is called as common abiotic agents helping the transfer of pollen grains in the flower. And here the single ovule is present in the ovary, or sometime in the single flower there are many ovules are also there. कभी कभी एक ओवरी के अंदर एक ही फ्लावर रहता है, या ऐसे मेनी फ्लावर रहते हैं बंच में, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस. Single ovule present in single ovary, but there are many flowers are present in the bunch called as inflorescence. Okay, so example corn cob, मक्का बोलते हैं मेज. मेज में आपको पता होगा, मेज में क्या होता है, मेल फ्लावर जो है ऊपर है उसको हम बोलते हैं मेल फ्लावर या टेसल बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर जो है उसको हम कोब बोलते हैं, कोब. ओके, तो होता क्या है, मेल फ्लावर की pollen grain from the male flower blow with the help of wind and fall on the stigma of the female flower. This is cob. Cob is called as female flower and they produce stigma, and that's why from male flower pollen grain fall on the stigma of female flower. That process is called as anemophily. Okay, फिर वो जिप्टोनोगैमी हो या फिर एलोगैमी हो, मगर फ्लावर दो है अलग अलग और उसमें पॉलिनेशन होता है ऐसे. टेसल टेसल मतलब मेल फ्लावर जो है टॉप में है, और स्टिग्मा या स्टाइल नीचे है. एंड स्टिग्मा हैव कैपेसिटी टू ट्रैप द, स्टिग्मा क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को. ओके, स्टिग्मा स्टिकी रहता है. एंड विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. विंड पॉलिनेशन जनरली किसमें होता है, ग्रासेस में होता है. प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी. ओके, और पॉलिनेशन में याद रखो पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. फ्लावर्स मैंने बोला आपको कलरलेस है, नेक्टरलेस है, जिसमें
जो कैलिस एंड करोला है अनडेवलप्ड है, या फिर कभी कभी उसका पेरियंट बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं हर एक फ्लावर में। क्यों? क्योंकि वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन ज्यादा है ना। पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट, पोलन ग्रेन्स आर हैविंग स्मूथ एक्साइन। पोलन ग्रेन की जो वाल है वो उसकी वाल जो है स्मूथ एक्साइन रहता है। पोलन ग्रेन की वाल में स्मूथ एक्साइन रहता है। किसमें? पोलन ग्रेन की वाल में स्मूथ एक्साइन, लाइट वेट के रहते हैं, डस्टी रहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट। व्हाई? बिकॉज द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन मोर ना। एनिमोफिली में क्या होता है? पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पोलन ग्रेन ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, लाइट वेट रहते हैं, नॉन स्टिकी रहते हैं। ओके, स्मूथ वाल रहती है उसकी, एंड दे आर एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड इन द स्टेमन एंड इजी डिस्पर्सन फॉर पॉलिनेशन। तो इसमें याद रखो, इसमें जो स्टेमन रहता है, स्टेमन इज जनरली विथ वर्सटाइल एंथर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टेमन है उसमें क्या होता है? वर्सटाइल एंथर रहता है। वर्सटाइल एंथर रहता है कहां पे? स्टेमन के अंदर। और स्टिग्मा जो रहता है, स्टिग्मा इज जनरली फिदरी। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में बोल रहा हूं, स्टेमन इज विथ वर्सटाइल एंथर। स्टेमन में क्या है? वर्सटाइल एंथर है, मतलब बायफॉर्मल एंथर है और फिलामेंट लॉन्ग है, इसीलिए जब फिलामेंट हिलता है तो एंथर क्या करता है? डिस्पर्स करता है किसको? पोलन ग्रेन को एयर में, विंड में। और स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा इज जनरली लार्ज, फिदरी। स्टिग्मा लार्ज है, फिदरी है, रफ है। ओके, और इसलिए वो ट्रैप करता है किसको? एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। एयरबॉर्न मतलब हवा के द्वारा, जो विंड के द्वारा पोलन ग्रेन कैरी होते हैं, उसको ट्रैप करने के लिए हेल्प करता है। कौन? दैट इज स्टिग्मा। और उसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से एग्जांपल इसके एनिमोफिली के। ओके, पोलन ग्रेन्स जो है नॉन स्टिकी है और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस न्यूमरस। एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं इसका। मेज, wheat, cucumber, mango, papaya, lobia, eucalyptus, sugarcane, and all gymnosperm, as well as coconut tree, as well as different grasses. Grasses में वगैरह ऐसे टाइप का पॉलिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज, या फिर विंग्ड पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस आल्सो। पाइनस पता होगा आपको, जिम्नोस्पर्म है ना, उसमें विंग्ड पोलन ग्रेन रहते हैं और विंग के द्वारा फ्लाई होते हैं, या मतलब हवा में फ्लाई होके ब्लो होते हैं और फीमेल ओव्यूल की तरफ कैरी होते हैं। सो दिस इज अबाउट द एनिमोफिली। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। व्हाट इज हाइड्रोफिली? हाइड्रो वाटर, फिली लव। व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन occurs with the help of water is called hydrophily. Okay, और इट इज क्वाइट रेयर, थोड़ा कम होता है, एक्वाटिक प्लांट में होता है जनरली, मगर ऐसा भी नहीं है कि पूरे एक्वाटिक प्लांट में हाइड्रोफिली हो जाए, नहीं। देयर आर सम एक्सेप्शन आर आल्सो। कुछ एक्वाटिक प्लांट है कि जिसमें हाइड्रोफिली नहीं हो पाता, उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ प्लांट है जैसे कि लोटस है, वाटर हाइसिंथ है, जिसमें पानी के अंदर रहते हुए भी वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, हाइड्रोफिली नहीं होता, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, वो एक्सेप्शन है उसमें। तो ये जो टाइप का पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली, थोड़ा रेयर होता है, कम प्लांट में होता है। 30 जनरा प्लांट एंजियोस्पर्म जो है उसमें 30 जनरा, जिससे ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। हाइड्रोफिली किसमें दिखता है आपको? 30 जनरा ऑफ मोनोकॉट प्लांट में होता है। एग्जांपल वैलिसनारिया, हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर प्लांट है, और जोस्टेरा जिसको हम मरीन सी ग्रास बोलते हैं। और एक बार बोल रहा हूं 3 एग्जांपल, वैलिसनारिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा, ये 3 प्लांट है जिसमें आपको हाइड्रोफिली मिलता है। बट लोअर द प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। लोअर प्लांट जो है आपको पता होगा, ब्रायोफाइट है, टेरोडोफाइट है, उसमें याद करो गैमेटोफाइट में जो एंथ्रोजोइड के अंदर एंथ्रोजोइड बनते हैं ना, एंथ्रीडियम के अंदर जो एंथ्रोजोइड बनते हैं, वो एंथ्रोजोइड को आर्चोगोनियम की तरफ, एक की तरफ लेके जाने के लिए वाटर इज द मीडियम। इसका मतलब लोअर प्लांट में भी वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है।
मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं फीमेल गैमेट की तरफ। ओके, मेल गैमेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फीमेल गैमेट्स in bryophyte as well as pteridophytes and limited because they need water and transport of male gamete and fertilization ना। तो वो प्लांट का जो स्प्रेड है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का लिमिटेड एरिया में होता है, जहां पे वाटर सोर्स अवेलेबल है वहां पे होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत है ना, तो वहां पे भी हाइड्रोफिली होता है। अगर आप देखते हो वैलिसनारिया में, अगर देखते हो वैलिसनारिया, एग्जांपल वैलिसनारिया, ओके, वैलिसनारिया ऐसा प्लांट है जो डायोसियस है। डायोसियस मतलब, ओके, डायोसियस का मतलब क्या है? मेल फ्लावर, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट अलग अलग है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग है। और इसमें क्या होता है कि जो फीमेल प्लांट है उसका स्टिग्मा ऐसा लॉन्ग एंड कॉइल में रहता है, जो वाटर सरफेस के ऊपर आता है ना, कौन स्टिग्मा, ये प्लांट सबमर्ज्ड प्लांट रहते हैं। और उसके बाजू में अगर ये मेल प्लांट है तो मेल प्लांट के भी जो पोलन ग्रेन्स है या मेल फ्लावर है वो रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन्स, एंड दैट पोलन ग्रेन्स आर आल्सो कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये पोलन ग्रेन भी वाटर सरफेस के ऊपर आते हैं और ये फिर ऐसे सराउंडिंग घूमते हैं किसके? फीमेल फ्लावर के आजू बाजू में ऐसे रोटेट होते हैं और वाटर टाइड के द्वारा वाटर करंट के द्वारा, और जैसे वाटर करंट होता है तो फिर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और याद रखो यहाँ पे पोलन ग्रेन की खासियत ऐसी है, हियर द पोलन ग्रेन्स आर जनरली निडल शेप। पोलन ग्रेन जो है इसके निडल जैसे रहते हैं पोलन ग्रेन्स, और उसके ऊपर एग्जाम भी नहीं है। आप बोलेंगे निडल शेप क्यों है? क्योंकि वाटर जब गिरता है तो स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद पोलन ग्रेन इमीडिएटली अंदर इंसर्ट हो जाए, इसीलिए वो निडल शेप है। उसके ऊपर एग्जाम क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम से पोलन ट्यूब आने के लिए टाइम लगता है, इसलिए निडल शेप का पोलन ग्रेन है, एग्जाम एब्सेंट है। और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे आर कॉल्ड एज वाटर करंट कॉल्ड एज एपिहाइड्रोफिली। ओके, जहां पे फीमेल फ्लावर पानी के ऊपर आते हैं स्टिग्मा, और मेल फ्लावर पानी के ऊपर आते हैं और ऊपर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। किसमें हो रहा है एपिहाइड्रोफिली? वैलिसनारिया में हो रहा है एपिहाइड्रोफिली। सी ग्रास में क्या होता है? सी ग्रास में क्या होता है? सी ग्रास मतलब कौन? ज़ूस्टेरा। उसमें क्या होता है? फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। फीमेल फ्लावर वाटर के अंदर ही रहते हैं, एंड पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड इनसाइड द वाटर। ओके, इसमें बोल रहा हूं सी ग्रास में। सी ग्रास में कौन सा होता है फिर? दे आर कैरीड इनसाइड द वाटर रीच टू द स्टिग्मा। इसका मतलब जो हाइड्रीला है या फिर ज़ूस्टेरा है, वो दोनों में क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली होता है, पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर जो ग्रेविटी है, आप बोलेंगे पोलन ग्रेन की ग्रेविटी बढ़ती क्यों है सर? पोलन ग्रेन के अंदर स्टार्च ग्रेन रहते हैं और जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी बढ़ती है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है? याद रखो, हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है? पोलन ग्रेन की ग्रेविटी वो वाटर की ग्रेविटी की इक्वल होती है, इसलिए पोलन ग्रेन अंदर जा पाते हैं। कहां पे? पानी के अंदर घुस पाते हैं, इसलिए वहां पे हाइपोहाइड्रोफिली होता है। और एपिहाइड्रोफिली में क्या होता है? एपिहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन की ग्रेविटी कम है, इसलिए हल्के है वो, फिर वो पानी के ऊपर तैरते हैं। कौन? एपिहाइड्रोफिली में। ओके, पोलन ग्रेन ऊपर आते हैं पानी के ऊपर और वहां पे एपिहाइड्रोफिली होते हैं ना, तो फिर पोलन ग्रेन की जो ग्रेविटी है उसके अंदर रहने वाले स्टार्च ग्रेन की वजह से वो हेल्प करता है। किसके लिए? एपिहाइड्रोफिली होने के लिए या फिर हाइपोहाइड्रोफिली होने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन्स आर मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग। पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है? म्यूसिलेज का कवर होता है। व्हाट इज म्यूसिलेज? वाटर हीटिंग, वाटर को हीट करता है। पानी के अंदर रहते हुए भी वो पानी को दूर हटाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वेटिंग। वेटिंग नहीं होने देता म्यूसिलेज। पोलन ग्रेन के ऊपर जो म्यूसिलेज का कोट है उसको पोलन ग्रेन को वेट नहीं होने देता, वेटेबल नहीं होने देता उसको। एंड नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलस। पहले बोल चुका हूं मैं, सभी एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिलस नहीं है। बहुत से प्लांट है जो पानी के अंदर रहते हुए भी उसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है,
वाटर लिली है, लोटस है, जिसमें हाइड्रोफिली नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके फ्लावर जो है पानी के ऊपर आते हैं और वहां पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या फिर विंड पॉलिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली या फिर एनिमोफिली बोलते हैं। एंड विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड पॉलिनेशन करने वाले और वाटर पॉलिनेशन करने वाले जो फ्लावर्स है उसमें ना कलर है ना नेक्टर है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है ना, हाइड्रोफिली इसका एग्जांपल है। बहुत से प्लांट में हाइड्रोफिली आपको मिलता है। ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल मैंने बताया, सरफेस के ऊपर होता है, वेलेसनारी एग्जांपल है। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल बताया, जूस्टेरा है, सेराटोफाइलम है, हाइड्रिला है। ओके, सेराटोफाइलम हाइड्रिला कैसे है? फ्रेश वाटर है। जूस्टेरा कैसा था? जूस्टेरा कैसा था? मरीन वाटर में था। और हाइड्रिला एंड सेराटोफाइलम जो है फ्रेश वाटर में आते हैं, मगर ये तीनों में हाइपोहाइड्रोफिली होती है और वेलेसनारिया में क्या होता है? ईपी हाइड्रोफिली होता है। ओके, सो ये भी एग्जांपल है। देन यहाँ पे हाइड्रोफिली आपको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये मेल फ्लावर है नीचे, ये फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा इसका ऊपर आ गया है और इसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। सो इन दिस वे अबायोटिक एजेंसी फिनिश। अबायोटिक एजेंसी में जो पॉलिनेटर थे, पॉलिनेशन करने वाले एजेंसी थे, प्लांट थे, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया है। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ बायोटिक एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंसी में पहला एजेंसी है कौन सा? एंटोमोफिली। एंटोमो मींस इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बनता है। फ्लावर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बनता है और वो फिर क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं किसको? इंसेक्ट को। और फिर इंसेक्ट अट्रैक्ट होने के बाद ओके, ये इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है ना, इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होता है। उसके बहुत से एग्जांपल है, इसके बहुत से एग्जांपल है। एंटोमोफिली के बहुत एग्जांपल है, रोज है, सनफ्लावर है, या फिर सैल्विनिया है, जिसमें लीवर मैकेनिज्म होता है। वन बाय हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बायोटिक एजेंसी में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाला एंटोमोफिली है। इंसेक्ट पॉलिनेशन है, उसको हम सुफिली बोलते हैं। यहाँ पे फ्लावर का साइज लार्ज रहता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर प्लांट में होता है। और जो जूफिली में जो पॉलिनेटर्स है, ओके, कौन है? हनी बी है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बीटल्स, वेस्प, एंड, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स है, हमिंग बर्ड्स है, बर्ड के टाइप्स। बर्ड के कौन से टाइप है? सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स में भी होता है, प्राइमेट में होता है। प्राइमेट जो कि ल्यूमर्स है, ल्यूमर्स स्मॉल मंकी जैसे रहते हैं, वो प्राइमेट है। या फिर आर्बोरियल एनिमल जो है, जो ट्री ड्वेलिंग है, ट्री ड्वेलिंग एनिमल जैसे स्क्विरल जैसे, रोडेंट जैसे, वो भी पॉलिनेशन करते हैं। कुछ रेप्टाइल्स है जैसे कि जिक्को लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, वो भी पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं ना। मतलब डिफरेंट एनिमल्स हेल्प करते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको कहा गया है जूफिली। क्या कहा गया है? जूफिली। जू मींस एनिमल्स, हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग प्लांट में देख सकते हो क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट जब होता है तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा 80% पॉलिनेशन कौन कर रहा है? हनी बी। ओके, पर्टिकुलरली बीज आर मोर कॉमन एंटोमोफिली में। एंटोमो इंसेक्ट, फिली लव these flowers, love insect, or insect love their flowers, and that's why these flowers have large size, then colorful petals, then nectars also there more, then having good smell, odorful flowers are there. Okay, so this is about the character of flowers. And pollen grains also, flowers of the animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animals. ओके, तो पहला मैं आपको बता रहा हूं इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसमें फ्लावर का साइज लार्ज है, कलरफुल है, फ्रैग्रेंटफुल है, वाटरफुल है, फ्लावर्स रिच इन द नेक्टर आल्सो। व्हाट इज नेक्टर? शुगरी सब्सटेंस जो फ्लावर के पेटल से सीक्रेट होता है नेक्टर ग्लैंड के अंदर, वो। और इसमें पोलन ग्रेन भी इडेबल होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन या शुगर बनती है। पोलन ग्रेन्स आर आल्सो इडेबल एंड फ्लोरल रिवार्ड्स। आप बोलेंगे सर इंसेक्ट क्यों आते हैं फ्लावर की तरफ? क्योंकि फ्लावर क्या करता है? इंसेक्ट को रिवार्ड देता है, मतलब बख्शिश देता है ना। और इंसेक्ट क्या करता है उसके बदले में?
इंसेक्ट क्या करता है उसके बदले में पॉलिनेशन करके देता है किसको, प्लांट को, मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल एसोसिएशन है। इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, ओके, और प्लांट इंसेक्ट को क्या करता है, रिवार्ड देता है, इसका नेक्टर का या पोलन ग्रेन का रिवार्ड देता है। स्मॉल फ्लावर जो है इंसेक्ट को नहीं देते, इन 5 स्पीशीज अगर रहते हैं तो फिर वो स्मॉल फ्लावर क्या होते हैं, बंडल में आते हैं, बंच में आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का बेनिफिट ऐसा है कि चांस ऑफ पॉलिनेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ पॉलिनेशन जो है ज्यादा दिन होता है ना। कब, अगर इन्फ्लोरेसेंस हुआ तो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, बंच ऑफ फ्लावर्स बनता है। जब फ्लावर अगर अनविजिबल है, स्मॉल फ्लावर्स, तो वो बंच में आते हैं विजिबल बनाने के लिए। और इंसेक्ट में कुछ फ्लाइज भी है, बिटल्स है, जो सिक्रेट करते हैं क्या, फाउल ओडर, ओके। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल्स, फ्लाइज से या बिटल से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स में क्या आता है, फाउल ओडर आता है, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। एंड पोलन ग्रेन कैसे रहते हैं, एंटोफिली में याद रखो, पोलन ग्रेन्स आर विद जनरली रफ एक्साइन्स। पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो जनरली कैसा रहता है, रफ रहता है, इसमें एंटोफिली में, ओके। और इसमें ये जर्म पोज रहते हैं, सो एक्साइन इज जनरली रफ रहता है, स्पाइनल रहता है, क्योंकि इजीली वो कहां गिर सकता है, स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा भी वहां पे स्टिकी बन जाता है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स एनिमल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस एंथर, और जब इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लावर के अंदर इंसर्ट होके नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो नेक्टर कलेक्ट करते टाइम जब ये सैल्विनिया प्लांट में होता है, ऐसे सैल्विनिया प्लांट में होता है, ऐसे क्या होता है, ओके, क्या होता है इसमें सैल्विनिया में, दैट इज कॉल्ड एज सैल्विया नाम का प्लांट है, इसमें ऐसे होता है। क्या होता है सैल्विया में, इसको बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब क्या होता है, या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट है फ्लावर के अंदर जाता है और अंदर जाके ये स्टेराइल एंथर के ऊपर बैठ जाता है। दिस इज व्हाट, स्टेराइल एंथर के ऊपर बैठ जाता है, और उसी के साथ ये जो फर्टाइल एंथर है, फर्टाइल एंथर लोग जो है वो बेंड हो जाता है, और इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर ये पोलन ग्रेन गिरते हैं ना, समझ रहे कि नहीं। सैल्विया में जो मैकेनिज्म हो रहा है उसको हम लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं या टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंथर, 2 टाइप के एंथर लोग, स्टेराइल एंथर है, फर्टाइल एंथर है। तो स्टेराइल एंथर के ऊपर क्या होता है, जब इंसेक्ट बैठता है तो फिर फर्टाइल एंथर बेंड हो जाता है, और फिर पोलन ग्रेन जो है उसके बैक साइड में गिरते हैं, किसके, इंसेक्ट के, और फिर पॉलिनेशन करता है। उसको सैल्विया को लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। एनिमल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड इट इज देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन गिर के फिर वो ट्रांसफर करते हैं, विजिट करते हैं अलग अलग फ्लावर्स को। आई मीन पोलन ग्रेन्स आर कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, देन दे कॉज पॉलिनेशन ना। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं और वहां पे जाके गिरते हैं तो वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है, ओके। सम फ्लावर प्रोवाइड्स सेफ प्लेस फॉर द फ्लोरल रिवार्ड्स। देखो कुछ फ्लावर क्या कर रहे हैं, नेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फ्लावर पोलन ग्रेन कर रहे हैं रिवार्ड, और कुछ फ्लावर जो है सेफ प्लेस उनको प्रोटेक्शन करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा अमोर्फोफिलस, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोर्फोफैलस नाम का प्लांट है, फ्लावर है, जिसकी हाइट किसकी, फ्लावर की, टॉलेस्ट फ्लावर है, जिसकी हाइट 6 फीट है। तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट जाके छुप जाते हैं, एंड अ मॉथ स्पीसीज ऑफ द प्लांट लाइक यूका नाम का प्लांट है, उसमें क्या होता है, मॉथ नाम की जो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, कंप्लीट द लाइफ साइकिल, ओके, कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल। कौन, यूका एंड मॉथ एंड यूका क्या है, फ्लावर्स है। तो इसमें क्या होता है, यूका जो फ्लावर्स है उसके ऊपर ये मॉथ जाके क्या करता है, ये फीमेल मॉथ जो है यूका फ्लावर के ऊपर जाके एग ले करता है। कहां पे, यूका फ्लावर के ऊपर जाके ये जो फीमेल मॉथ है एग ले करता है, एग डालता है,
और फिर आपको पता होगा ये दोनों एक दूसरे के सिवा सर्वाइव नहीं हो सकते। कौन कौन? यूका और मॉथ। क्यों? क्योंकि यूका को चाहिए मॉथ और मॉथ को चाहिए यूका। कैसे कैसे हो रहा है देखो यहाँ पे, इंसेक्ट यूका फ्लावर के ऊपर जो ओहरी है उस ओहरी के अंदर जाके एक ले करता है, बाद में वो एक हैच हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और हैच होने के बाद उससे लार्वा बनता है। और ये लार्वा क्या करता है, जो फ्लावर के अंदर ओहरी थी या ओव्यूल थे, उस ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनते हैं, और इस सीड को खाते हैं कौन खाता है? लार्वा। यूका का जो लार्वा है, सॉरी मॉथ का जो लार्वा है वो यूका फ्लावर्स के अंदर लार्वा बन जाता है, और यूका फ्लावर की क्या खाता है? सीड खा लेता है, और फिर डिपॉजिट करता है। ये कहाँ पे? ओहरी के लॉक्यूल के अंदर। कौन? मॉथ जो है ओहरी के लॉक्यूल के अंदर, कैविटी के अंदर एक ले करता है, और वहां पे एक का हैचिंग होकर लार्वी बनते हैं, और लार्वी क्या करते हैं? फिर खाते हैं किसको? फ्लोरल पार्ट को या फिर सीड को, और डेवलप होती है उसको पूरी तरीके से डेवलप होती है। मेनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन ग्रेन्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी है कि जो पोलन ग्रेन कंज्यूम करते हैं, पोलन ग्रेन खाते हैं, और नेक्टर विदाउट बीइंग अबाउट पॉलिनेशंस। मतलब देखो उसको हम बोलते हैं रॉबर्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो पोलन ग्रेन खाते हैं, नेक्टर खाते हैं, मगर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोलन रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स। रॉबर मतलब चोरी करने वाले, मतलब पोलन ग्रेन खाते हैं, नेक्टर खाते हैं, मगर पॉलिनेशन नहीं करते, उसको हम बोलते हैं रॉबर्स बोलते हैं। ओके, इंसेक्ट में ऐसी भी कुछ सिचुएशन है, कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो ऐसा कर पाते हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में मैंने बोला आपको ये लीवर मैकेनिज्म था, जिसको हम टर्न पाई मैकेनिज्म बोलते हैं। सैल्विया प्लांट को हम सैक प्लांट भी बोलते हैं। प्रोटेंट्री कंडीशन होती है, प्रोटेंट्री कंडीशन मतलब एंड्रोसिन पहले रिलीज होते हैं, कहाँ पे? सैल्विया में। और ये मैंने बोला डोर ट्रैप मैकेनिज्म होता है कुछ प्लांट में। डोर ट्रैप मैकेनिज्म क्या है? फ्यूकस स्पीशीज में होता है। फ्यूकस स्पीशीज में डोर ट्रैप मैकेनिज्म कैसे होता है? देखो ये ऐसा फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है, तो वहां पे आते हैं कौन? इंसेक्ट। डोर ट्रैप का मतलब फ्लावर क्या करता है? इंसेक्ट को अंदर लेता है, ये इंसेक्ट अंदर अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेटर्स जो है ब्लास्टोफागा वास्प है, प्रोटेंटिव कंडीशन है, और यहाँ पे जो फ्लावर बनता है हाइपोथैंडियम बोलते हैं उसको, इन्फ्लोरेसेंस है। तो वहां पे क्या होता है? फिर मैच्योर मेल फ्लावर्स ट्रैप बाय इंसेक्ट एंड इमैच्योर फीमेल फ्लावर्स। इमैच्योर फीमेल फ्लावर जो है वो अंदर रहते हैं, और वहां पे इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है। ये है फीमेल फ्लावर्स, और इधर रहते ऊपर मेल फ्लावर्स। तो इंसेक्ट को ट्रैप करने की वजह से मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के ऊपर गिर सकते हैं, उसको हम ट्रैप डोर मैकेनिज्म बोलते हैं। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म भी है, जैसे कि फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जनरली फाउंड इन प्लांट लाइक अरिस्टोलॉकिया। देन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने इसमें बोला आपको, मॉथ और यूका में बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है यूका फ्लावर के ऊपर। फीमेल मॉथ जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासिला, वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर पॉलिनेशन करने के लिए। बाद में शूडो पॉपुलेशन होता है कुछ फ्लावर में। शूडो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज शूडो पॉपुलेशन? कुछ फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर का शेप, द शेप ऑफ फ्लावर इज लुक लाइक फीमेल इंसेक्ट। कुछ फ्लावर में बोल रहा हूं, फ्लावर का जो शेप है वो फीमेल इंसेक्ट जैसे दिखता है। द शेप ऑफ फ्लावर इज लुक लाइक, फ्लावर का शेप जो है फीमेल इंसेक्ट जैसे दिखता है, इसका शेप फ्लावर का। तो फिर वहां पे क्या होता है? मेल इंसेक्ट आके उसको कॉपुलेशन करना स्टार्ट करता है, और जब कॉपुलेशन करता है तो फिर पॉलिनेशन हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग शूडो कॉपुलेशन। ऑफेरिस नाम का प्लांट है, ऑफेरिस नाम का प्लांट है, उसमें ऑर्किड लाइक ऑफेरिस। ऑफेरिस नाम का एक ऑर्किड है, इसमें फ्लावर का शेप फीमेल इंसेक्ट जैसा दिखता है, फीमेल इंसेक्ट जैसा दिखता है, इसीलिए फ्लावर इज लुक लाइक
फ्लावर लुक लाइक, फ्लावर का कलर कैसा देता है, स्ट्रक्चर फीमेल फ्लावर देता है, और फिर मेल फ्लावर, मेल इंसेक्ट क्या होता है उसके ऊपर आके बैठ के कॉपुलेशन करता है, सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, और उसको बोलते हैं हम लोग शूडो कॉपुलेशन बोलते हैं, है ना। कोल्पा वास्प, कोल्पा वास्प बोल के इंसेक्ट का नाम बोल रहा हूँ, कोल्पा वास्प है, और फ्लावर का नाम बोल रहा हूँ ऑफेरिस नाम का फ्लावर है, प्लांट है, उसमें ऐसी कंडीशन होती है। ओके, पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेटर्स, ठीक है ना। और बाकी फिर ऑर्निथोफिली है, व्हाट इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स, बर्ड्स। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, बर्ड द्वारा पॉलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली, और इसमें जो फ्लावर्स है वो बड़े रहते हैं, ट्यूबुलर करोला रहता है, और बर्ड क्या करता है, बर्ड्स इंसर्ट देयर लॉन्ग बीक, बर्ड्स की जो लॉन्ग बीक है वो अंदर इंसर्ट करके नेक्टर कलेक्ट करते हैं, ओके, फ्लावर के अंदर से। यहाँ पे भी अबंडेंट नेक्टर फॉर्म होता है, ट्यूबुलर करोला फॉर्म होता है, ट्यूबुलर करोला फॉर्म होता है इसका फ्लावर का, नेक्टर अबंडेंट होता है, फ्लावर कलरफुल है, ओके, फ्लावर का कलर येलो ऑरेंज रहता है और अट्रैक्ट करता है किसको, बर्ड्स को, तो उसकी वजह से बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड की बीक जो है लॉन्ग है और नेक्टर कलेक्ट करते हैं बर्ड्स, इसलिए उसको बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिलस फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर्स का साइज लार्ज है, अट्रैक्टिव है, सनबर्ड्स है, हमिंग बर्ड्स है, ओके, बिग्नोनिया प्लांट्स है, हनी बर्ड्स, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के ऊपर बॉम्बैक्स प्लांट है, बॉम्बैक्स, वो अलग अलग प्लांट्स है, उसमें ये पॉलिनेशन करने के हेल्प करता है। देन कायरोप्टेरोफिली, व्हाट इज कायरोप्टेरोफिली, पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ बैट्स, बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ओके, बर्ड पॉलिनेशन क्लियर हो गया। बैट पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर का कलर डल रहता है, ब्लूमिंग एट नाइट, और रॉटन फ्रूट जैसा वाटर उसका मिलता है, पोलन ग्रेन का वगैरह, अबंडेंट वाटर नेक्टर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, बैट पॉलिनेशन में। बैट कौन है, नॉक्टर्नल एनिमल है, और पॉलिनेशन करता है किसको, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर को, जो फ्लावर बिग साइज स्टाउट है, मजबूत रहते हैं फ्लावर्स, और एग्जांपल है जो फ्लावर्स का एंथोसिपेलस एंड किग्लिया पिन्नाटा, एंथोसिपेलस एंड किग्लिया पिन्नाटा नाम के प्लांट है, उसमें बैट पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट इज मिर्मिकोफिली, मतलब एंट पॉलिनेशन करते हैं, एंट पॉलिनेशन, टर्माइट जो है रूबिएसी फैमिली में अकेसिया होता है, रूबिएसी फैमिली में, या फिर अकेसिया, अकेसिया मतलब बाबुल बोलते हैं हम उसको, उसमें मिर्मिकोफिली होता है, एंट पॉलिनेशन होता है। मिलियाकोफिली में स्नेल पॉलिनेशन होता है, मिलियाकोफिली, दैट इज क्रिसेंथिमम और लैम्ना, क्रिसेंथिमम और लैम्ना में मिलियाकोफिली मतलब स्नेल पॉलिनेशन होता है। और लास्ट ऑपियोफिली मतलब स्नेक पॉलिनेशन, सैंटलम आल्बम, सैंटलम आल्बम मतलब सैंडलवुड जैसे प्लांट जो है उसके ऊपर स्नेक सर्वाइव होता है, और उस स्नेक के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दैट इज अबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स help in the pollination process, okay, are called as agents of pollination. Thank you, have a good day. In both cross-pollination and self-pollination, pollinating agents play a vital role. These agents include biotic agents such as insects, birds, bees, butterflies, and mammals such as bats, as well as abiotic agents such as wind and water. Incidentally, pollination in a majority of plants is aided by biotic pollinating agents, which get attracted by flowers which vary from each other to attract their specific pollinator. Insect-pollinated flowers, for instance, are usually large and fragrant. However, if they are small, they are bunched together in an inflorescence to make them conspicuous. Moreover, these flowers produce pollen grains as well as large quantities of nectar to reward the agents. When a pollinating agent comes in contact with the anther, its body gets covered in a coat of sticky pollen grains. When the agent sits on another flower to suck the nectar, the pollen present on their bodies comes into contact with the stigma. Thus,
completing the process of pollination. Conversely, flowers pollinated by butterflies are usually lightly scented and brightly colored, with nectar not very deeply hidden, while those pollinated by beetles and flies secrete a rotten odor. Flowers pollinated by birds, on the other hand, have large, odorless orange or red tubes which are rich in honey. Certain plants attract pollinating insects by offering them shelter. For instance, Amorphophallus, a 6-foot-tall flower, attracts pollinating insects by offering them a safe haven to lay their eggs. In the yucca plant, on the other hand, a female moth transfers the pollen of another flower to the stigma and simultaneously deposits her eggs in the locule of the flower's ovary. The larvae, which hatch out of the eggs, start consuming some of the developing seeds, while leaving enough of them to propagate the plant. Thus, both the moth and the plant are dependent on each other for the completion of their respective life cycles. However, certain birds and insects such as the bumblebee visit flowers for nectar and pollen, but don't bring about pollination. These creatures are referred to as pollen robbers. Honeybees, as well as other insects, also pollinate a large number of aquatic flowering plants, such as the freshwater lily. However, in certain freshwater plants such as Vallisneria and Hydrilla, and marine seagrasses such as Zostera, pollination occurs by water. This is also known as hydrophily. In Vallisneria, for example, the female plant produces a long-stalked female flower that reaches the surface of the water. The male plant, on the other hand, remains submerged in water, where it produces several tiny floral buds. Upon maturing, the buds rise to the water's surface and open up to expose the anthers. Pollen released from the anthers is carried by water currents, where some of them eventually come in contact with the stigma. In the case of Zostera, a dioecious seagrass, the male and female flowers remain submerged in water. The male flowers produce long and ribbon-like pollen grains which have a mucilaginous covering that protects them from getting wet. The pollen released in water is carried by water currents towards the submerged stigma, and thus pollination is completed. Surprisingly, in aquatic plants, wind pollination, also called anemophily, is more widespread than water pollination. Wind pollination also occurs in terrestrial plants such as grass, bamboo, coconut, and maize. These plants possess a compact inflorescence with well-exposed stamens that allow easy dispersal of pollen, and a large feathery pistil which makes it easy to trap pollen. The pollen, which is light and non-sticky, is produced in large quantities. A single flower of cannabis, for instance, produces 5 lakh pollen grains
to compensate the loss of pollen associated with wind pollination. Thus, wind, water, as well as biotic pollinating agents bring about pollination. An important process that ultimately leads